Good morning, students. This e-content is prepared for UG classes of Home Science under the aegis of Directorate of Higher Education, Haryana. I am Dr. Shrestha, Assistant Professor, Department of Home Science, GCG Palwal, कुरुक्षेत्र. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेट मैनेजमेंट. वेट मैनेजमेंट के इस टॉपिक को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज ओबेसिटी एंड सेकंड वन इज अंडरवेट. सो इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट के साथ आगे बढ़ेंगे, दैट इज ओबेसिटी. नाउ द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो. It includes introduction to weight management, introduction to obesity, major forms of weight imbalance, types, etiology, methods of inspection, hazards, treatment, principles of diet management, dietary modifications, some suggestions, question bank and references. So सबसे पहले बात करते हैं introduction to weight management की. Body weight, as we all know, is sum of bones, muscles, organs, body fluids and adipose tissue. Some or all these components are subject to normal change as a reflection of growth, reproductive status, variation in exercise levels and effects of aging. और ideal body weight को maintain करके रखना, it involves a complex interaction of several physiological and environmental factors. अगर किसी भी factor में अगर कोई change आता है, then it causes changes in the body weight components and hence fluctuation in the weight of a person. Body weight is often described in terms of its composition. It comprised of two parts, fat-free mass and fat mass. Fat-free mass literally means tissue devoid of all extrable fats. इसे lean body mass भी कहा जाता है, which includes parts of the body that is free of adipose tissues, जैसे कि skeletal muscles, water, bones and a small amount of essential fat in the internal organs, bone marrow and nerve tissue. It is higher in men than in women and increases with exercise. और older adults में भी ये कम होता है. फैट मास, इट इज अ क्रिटिकल फैक्टर फॉर वेट मैनेजमेंट. इसे एसेंशियल फैट और स्टोरेज फैट के नाम से भी जाना जाता है. हमारी सभी फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए ये बहुत जरूरी होता है. बोन मैरो, हार्ट्स, लंग, लिवर और किडनी, मसल्स में ये बहुत कम अमाउंट में स्टोर होता है. In males, 3% of the total body fat is considered to be essential, whereas in females it is 12%. अब बात करते हैं ओबेसिटी की. आप सबने ये फ्रेज शायद पहले सुना हो, द लॉन्गर द बेल्ट द शॉर्टर द लाइफ स्पैन. यानी जितना आपके बेल्ट का साइज बढ़ता जाएगा उतना ही आपका लाइफ स्पैन जो है वो छोटा होता जाएगा. Obesity, it is the most common nutritional disorder. It is a condition of excess body weight, that is when a person is 20% or more than the ideal body weight. It is a state of excess accumulation of fat in the body. अब बात करते हैं मेजर फॉर्म्स ऑफ वेट इम्बैलेंस की. ओवरवेट एंड ओबेसिटी आर रिलेटिव टर्म्स एंड नॉट सिनोनिम्स. अक्सर हम सब इन दो टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं और ओवरवेट और ओबेसिटी को एक जैसा ही समझा जाता है, जबकि ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं. Overweight is a condition when a person who is 10 to 20% above the normal ideal body weight for his age, sex and height, and obese is a person when he is more than 20% and above the normal ideal body weight for his age, sex and height. Or underweight is a condition when a person who is 10% or below the normal ideal body weight for his age, sex and height. Obesity and overweight have to be reviewed in terms of the lean body muscle mass to body fat. For example, अगर हम एक एथलीट की बात करें, an athlete will have a highly developed muscle mass और इसीलिए एक लेमैन के लिए वो overweight समझा जाएगा, but his body has more muscles than fat in proportion. So it is not mere a matter of total weight. One must be able to distinguish between weight due to well-developed fat in proportion, well-developed muscle mass and due to excessive fat deposition. Now, types of obesity. There are basically two types of obesity, developmental obesity and reactive obesity. Developmental obesity की अगर बात करें तो it begins in the early years of a child's life and continues steadily over the adult years. So इसकी foundation तभी से set हो जाती है जब बच्चा 4 years की एज का होता है. The cells become saturated with fat और जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है ज़्यादा से ज़्यादा फैट उसकी बॉडी में accumulate होता चला जाता है. ऐसे बच्चे आमतौर पर लंबे होते हैं, अपनी एज से बड़े लगते हैं और
ओबीस हो जाते हैं राइट फ्रॉम द इन्फेंसी इवन अप टू देयर अडल्ट ईयर्स. दिस टाइप ऑफ ओबेसिटी रिजल्ट्स इन अ हायर लीन body mass along with fat. Next is reactive obesity. This type of obesity is due to periods of emotional stress in child's life. During such stress period, the child may overeat, resulting in increase in weight. Since this period is intermittent, so weight also reflects ups and downs. Such type of obesity results in a child having more lean mass as compared to fat content. फाइन. इवन मेल्स और फीमेल्स में भी वेट गेन डिफरेंट होता है. फीमेल्स ज्यादातर फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद या मीनोपॉज के बाद वेट गेन करती हैं, जबकि मेल्स में आफ्टर द एज ऑफ 50 वेट गेन ज्यादा होता है, क्योंकि आफ्टर दिस एज उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी कम हो जाता है, लेकिन कैलोरी इनटेक हमारा उतना ही रहता है. नाउ कॉजेस और इटियोलॉजी ऑफ ओबेसिटी. First one is genetic factor. Genetic inheritance influences a person's chances of becoming obese. Obesity runs in the family और किसी भी बच्चे के obese होने के chances बढ़ जाते हैं अगर उनके पेरेंट्स obese होते हैं. Next is psychological factor. obese लोग जो होते हैं वो ज्यादातर फूड के टेस्ट और अपीयरेंस से अफेक्टेड रहते हैं rather than हंगर और सोसाइटी. और ओबेसिटी को लेकर उनके मन में जो टेंशन है, फियर, एंजाइटी और इवन ह्यूमिलेशन, बोर्डम, लोनलीनेस, सेंस ऑफ रिजेक्शन, ये सभी इमोशंस जो हैं उन्हें, ये सभी ओवर ईटिंग को उनको बढ़ावा देते हैं और वो फूड इनटेक से अपने इन इमोशंस को सेटिस्फाई करते हैं. नेक्स्ट इज बिहेवियरल फैक्टर which comprises of 3 further factors, that is physical activity, eating habits and social aspects. Increased mechanization, improved transport and working facility have reduced physical activity and promote sedentary lifestyle. So high energy intake and less physical work, ये direct cause है obesity का. And nibbling in between meals, eating at night due to insomnia, ज़्यादा starchy food खाना या refined fatty foods का intake, ये सभी factors contribute करते हैं obesity में. And last one is social and cultural aspect. Social and cultural pressures and need of eating out and attending parties is a common cause of excessive intake of food and energy. कभी कभी cultural celebrations और parties attend करना, social gatherings attend करना थोड़ा मजबूरी हो जाती है या ज़रूरी सा हो जाता है, जिसके कारण भी obesity को बढ़ावा मिलता है. Then physiological factors, it includes age and sex. जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया, फीमेल्स ज्यादातर फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद या मीनोपॉज के बाद वेट गेन करती हैं बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सर्टेन हॉर्मोन्स, जबकि मेल्स में आफ्टर द एज ऑफ 50 वेट गेन ज्यादा होता है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाती हैं, कैलोरी इनटेक जो है वो उतना ही रहता है. एंड लास्ट वन इज एंडोक्राइनल फैक्टर्स. ओबेसिटी इज एसोसिएटेड विद हाइपोथायराइडिज्म और मिक्सिडोमा. A minor group of people suffer from obesity due to malfunctioning of some one or more of the endocrine glands like pituitary glands, thyroid glands or sex glands. Now, let's discuss about methods of inspection or you can say assessment of obesity. सबसे पहले बात करते हैं, इसमें बच्चों ये प्रोसीजर्स आ जाते हैं. विजुअल इंस्पेक्शन, स्टैंडर्ड वेट फॉर हाइट मेजर्स, बॉडी मास इंडेक्स, स्किन फोल्ड थिकनेस एंड सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट. इन सभी से हम ओबेसिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं. सो सबसे पहले बात करते हैं हम विजुअल इंस्पेक्शन की. दिस इज अ सिंपल मेथड ऑफ असेसिंग ओबेसिटी, दो नॉट स्पेसिफिक. शरीर के कुछ हिस्सों पर वसा के जमाव से इसे एक विशेष आकार मिल जाता है जो मोस्टली एक एप्पल या एक पियर की तरह दिखता है, नाशपाती की तरह नजर आता है. व्हेन ट्रंक टू हिप रेशियो इज मोर, द बॉडी शेप रिजेम्बल्स दैट ऑफ एन एप्पल. ये मेल्स में ज्यादा कॉमन होता है जब ट्रंक का और हिप रेशियो जो होता है वो ज्यादा होता है. व्हेन ट्रंक टू हिप रेशियो इज लो, द बॉडी शेप इज लाइक दैट ऑफ अ पियर. एक नाशपाती की शेप की बॉडी हो जाती है व्हेन ट्रंक टू हिप रेशियो इज लो. ये ज्यादातर फीमेल्स में कॉमन रहता है. सो दिस टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन और दिस टाइप ऑफ इंस्पेक्शन इज नोन एज विजुअल इंस्पेक्शन एंड इट इज द बेसिक मेथड फॉर असेसिंग ओबेसिटी. नेक्स्ट आ जाता है बच्चों स्टैंडर्ड वेट फॉर हाइट मेजर्स. Basic anthropometric data, that is weight and height, can be most valuable indication of under or overnutrition, especially if recorded over a period of time. The patient's weight and height data can be utilized in the following ways. For example,
We can calculate ideal body weight of a medium built women as follows. जैसे अगर किसी की हाइट 5 feet 4 inches है तो आप उसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं by adding 2.3 kg 4 times in 50 kg. Same as with men, कि अगर किसी की हाइट 5 feet से कम है देन सब्ट्रैक्ट 10%, एंड अगर किसी की हाइट मतलब 5'9" से ज्यादा है, ऑलमोस्ट 6 है, देन यू कैन ऐड 10%. दिस इज अ यूजफुल पैरामीटर फॉर इल पेशेंट्स, खासकर टू इंडिकेट वेट लॉस. Comparison of present and main usual body weight helps to assess immediate and recent changes in the weight status. This is a latest news regarding ideal body weight. According to this news, National Nutrition Institute जो है, it adds 5 kg of ideal Indian body weight. Now 65 kg is ideal for men and 55 kg for women. नेक्स्ट वन इज बॉडी मास इंडेक्स और क्वाड्रेट इंडेक्स भी कहा जाता है इसे. इट इज अ मेजर ऑफ रिलेटिव बॉडी फिटनेस. इट इज एक्सप्रेस्ड एज वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर. ये जो टेबल आप देख रहे हैं बच्चों, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स इन अडल्ट्स. नॉर्मल 18.5 से 24.9 अगर वैल्यू है तो दैट इज कंसीडर टू बी नॉर्मल. अगर 18.5 से कम है देन द पर्सन इज अंडर वेट. अगर 24.9 25 से कम है, देन 25 से थोड़ा सा ज्यादा शुरू हो गया है, देन इट इज ओवरवेट. 25 से 29 के बीच की जो कंडीशन है दैट इज प्री ओबीस, एंड 30 से 34 दैट इज ओबेसिटी ग्रेड 1. 35 से 39.9 ओबेसिटी ग्रेड 2, एंड अबव 40 इज ओबेसिटी ग्रेड 3. देन आ जाता है स्किन फोल्ड थिकनेस. दिस इज द थर्ड पैरामीटर फॉर असेसिंग ओबेसिटी. द स्किन फोल्ड साइट्स आइडेंटिफाइज एज मोस्ट रिफ्लेक्टिव ऑफ बॉडी फैटनेस. कौन कौन सी मतलब ऐसी साइट्स हैं जहां से हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ फैट है. फर्स्ट वन हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ओवर द ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स. इस तरह से स्किन फोल्ड जो है थिकनेस मेजर की जाती है हमारे ट्राइसेप्स या बाइसेप्स से, या फिर बिलो द स्कैपुला, देन अबव इलियक क्रेस्ट जो हमारा ये साइड का पोर्शन है, कमर के साइड का जो पोर्शन होता है दैट इज, एंड देन इज अपर थाई. इस तरह से हम स्किन फोल्ड थिकनेस नाप कर भी ओबेसिटी का मेजरमेंट जो है वो कर सकते हैं. द परसेंट ऑफ फैट डिपॉजिटेड अंडर द स्किन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग वेट. इट कैन बी मेजर्ड एट वेरियस साइट विद द यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड स्किन कैलिपर्स. ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं इसे कहते हैं स्किन कैलिपर्स. And the last one is circumference measurement. Most common is waist hip ratio या waist hip circumference जिसे कहते हैं. Waist is measured around the navel and hip is measured around its broadest part. अगर वेस्ट का मेजरमेंट मेल्स में 40 इंचेस से और फीमेल्स में 35 इंचेस से अबव है तो ये रिस्क फैक्टर को इंडिकेट करता है. नेक्स्ट आता है वेस्ट टू हिप रेशियो, दैट इज WHR. It is an important tool to assess the type of obesity. If it is greater than 1 in men and above 0.85 in women, then it indicates abdominal obesity. Next is mid-arm circumference, MAC. Combining mid-arm circumference with tricep skin fold measurement allows indirect determination of the arm muscle area and arm fat area. Arm muscle area or bone-free muscle area is a good indication of lean body mass and thus an individual skeletal protein reserves. अब बात करते हैं ओबेसिटी के हजार्ड्स की. ओबेसिटी लीड्स टू वेरियस फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी. सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की, कि एज ओबीस पीपल ऑफन फील ह्यूमिलेटेड, नेग्लेक्टेड और अनहैप्पी. एज अ रिजल्ट दे मे सफर फ्रॉम वेरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. देन मैकेनिकल डिसेबिलिटीज. Extra weight load of the body may cause flat feet, arthritis, leading to pain in the hips, knees and spine. Slow, difficult movements जो होती हैं वो ज्यादा obese people को prone बना देती हैं to accidents.
प्रीडिपोजिशन टू अदर डिजीज लाइक ओबेसिटी जो है वो बाकी हेल्थ प्रॉब्लम से भी एसोसिएटेड होती है, लाइक हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, सर्जिकल रिस्क, रीनल इश्यूज, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस एंड सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स. एंड लास्ट वन इज रिड्यूस्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. क्योंकि ओबेसिटी इतनी सारी डिजीज से एसोसिएटेड है, सो ऑब्वियसली इट इज अ रिस्क फैक्टर, सो द रिस्क फैक्टर डिक्रीजेस life expectancy. Now, treatment of the obesity. Successful weight loss therefore can be brought about through a combined nutritional and behavioral approach, a well-balanced diet and consistent exercise ही आपको weight loss के गोल तक पहुंचा सकती है. अगर हम इन 3 चीजों पे अच्छे से फोकस करें, nutritional and behavioral approach, balanced diet and consistent exercise, these are the treatment for ओबेसिटी. नाउ डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ वेट मैनेजमेंट. बेसिकली ये 5 प्रिंसिपल्स हैं. टू ब्रिंग अबाउट अ ग्रेजुअल वेट लॉस, ये हमारा मेन प्रिंसिपल है कि हमें वेट लॉस करना है. देन टू प्रिवेंट मसल लॉस एंड अदर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, टू मेंटेन द डिजायरेबल वेट एंड अ गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस. सिर्फ वेट लॉस करना हमारा मकसद नहीं है, उसे मेंटेन करके रखना भी जरूरी है. सो टू मेंटेन द डिजायरेबल बॉडी वेट. Next one is to correct faulty food habits and to bring positive behavioral changes, whether it may be dietary changes or lifestyle management. Then what should be the criteria of weight reducing diet? क्या criteria होना चाहिए हम weight reducing diet में जो follow करें? The diet should be deficient in energy. It is adequate in other nutrients. Sufficient bulk होना चाहिए ताकि वो society provide करे. इजीली अडेप्टेड होना चाहिए फ्रॉम फैमिली मील्स. ऐसा नहीं लगना चाहिए 20 पीपल को कि आपको कुछ अलग ही खाने को दे दिया. हमें फैमिली के मील में से ही अडेप्टेशन करनी है. इजी टू फॉलो होना चाहिए, रीजनेबल इन कॉस्ट एंड मस्ट मॉडिफाई डाइटरी बिहेवियर्स. फाइन. अब बात करते हैं डाइटरी मॉडिफिकेशंस की. सबसे पहले आ जाता है एनर्जी. A decrease of 1000 kilocalories daily is required to lose weight about 1 kg a week, and reduction of 500 kilocalories daily brings about a weight loss of nearly half kg a week. यानी अगर हम 1000 किलो कैलोरी डेली रिड्यूस करते हैं तो वो एक वीक में हमारा 1 kg वेट रिड्यूस हो सकता है. यानी कि अगर हम 500 किलो कैलोरीज डेली रिड्यूस करें अपनी डाइट में से तो हमें एक वीक में हमारा हाफ kg जो है वेट जो है वो रिडक्शन हो जाएगा. दिस इज कैलकुलेटेड ऑन फॉलोइंग बेसिस. 1 gram of dietary fats gives you 9 kilocalories. So 1 gram of body fat, it gives you 7.7 kilocalories. So अगर half kg body fat है तो it will give you 500 multiplied by 7.7 is equal to 3850 kilocalories. Thus, to facilitate half kg weight loss in a week, we need to reduce energy intake by 3850 divided by 7, that is 550 kilocalories per day. फाइन. 550 किलो कैलोरीज पर डे रिड्यूस करने से हाफ kg वेट लॉस जो है एक वीक में पॉसिबल है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है एवरेज साउंड डाइट फॉर वेट रिडक्शन इन विमेन इज 1000 to 1200 किलो कैलोरीज एंड फॉर मेन इट इज 1500 to 18 किलो कैलोरीज पर डे. ड्रास्टिक कैलोरी रिस्ट्रिक्शन is not at all advisable. Energy intake for an overweight and obese can be computed by 2 methods. 2 methods हैं जिससे energy intake को आप compute कर सकते हैं. First one is reducing approximately 500 kilocalories per day in actual daily intake if the person is overweight, and reducing 750 to 1000 kilocalories in actual daily intake if the person is obese. अगर तो person overweight है तो आपने डेली इंटेक में से 500 किलो कैलोरीज जो है पर डे रिड्यूस करनी है, और अगर वो ओबीस है देन उसकी डेली के इंटेक में से 750 to 1000 किलो कैलोरीज जो है वो रिड्यूस करनी है. दिस इज द फर्स्ट मेथड. और दूसरा मेथड है कैलकुलेट एनर्जी इंटेक बेस्ड ऑन एक्टिविटी एंड आइडियल बॉडी वेट बाय यूजिंग द वैल्यूज ऑफ किलो कैलोरी प्रिस्क्राइब्ड पर केजी आइडियल बॉडी वेट. इस टेबल के अकॉर्डिंग पेशेंट की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आइडियल बॉडी वेट से हम उसको मेजर कर सकते हैं कि उसे कितनी एनर्जी चाहिए. सो दिस इज द डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन बॉडी वेट एंड एक्टिविटी. फाइन.
अब आ जाते हैं हम बाकी न्यूट्रिएंट्स पे। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। इट इज एडवाइजेबल टू गिव स्लाइटली हायर than normal protein as it gives a feeling of satiety and also helps to maintain a good nutritional status. Approximately 20% of total energy must be provided from protein. These should include good quality protein in the forms of low fat milk, lean meat and whole pulses. अगर फैट की बात करें तो 20% or less of total energy should be provided by fat and emphasis should be on unsaturated fat so as to reduce the risk of heart problems. Some amount of fat is important to make the food palatable and acceptable. Obesity में डाइट रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप फैट को बिल्कुल ही बंद कर दीजिए. नो, फैट इज important to make the food palatable and acceptable. However, fried food should be restricted and avoided. Fine. Next one is carbohydrates. Rest of the energy, that is 60% of the total energy, should come from carbohydrates. These should be mainly in complex form and not in simple form, like starch and dietary fibers. Simple forms like sugar should be limited. Dietary fiber or indigestible carbohydrate is also important to provide bulk and satiety. Next one is vitamin and minerals. Reducing diet should provide adequate amount of essential nutrients like mineral and vitamins. So to maintain a good nutritional status, fruits and vegetables should be amply included in the meals as they are low in energy and a good source of vitamin and minerals and provide roughage which helps to relieve constipation. So बहुत अच्छे amount में हमें vitamins and minerals जो है diet में add करने हैं. Now diet and feeding pattern. अगर हम डाइटरी पैटर्न्स की बात करें तो द सैटिस्फैक्टरी वैल्यू ऑफ द डाइट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सो एज टू गिव अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड वेलबींग. Adequate amount of protein food, fibrous fruits and vegetables, whole grain cereals, pulses, it provides satiety and thus help to cut down food intake. So ये अच्छे amount में हमें डाइट में ऐड करना है. फ्लूइड और सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नीडेड नहीं है अनलेस एंड अंटिल द ओबेसिटी इज accompanied with edema, hypertension and heart failure. अक्सर लोगों को लगता है ज्यादा नमक लेने से या फ्लूइड इनटेक से भी मोटापा बढ़ता है, जबकि ऐसा नहीं है. ठीक है. बेवरेज शुड नॉट बी स्वीटेन, हमें मीठे बेवरेजेस नहीं लेने. बल्किंग एजेंट जैसे कि ईसबगोल हो गया या और कोई बल्किंग एजेंट है दैट मे बी यूज्ड एज दे आर हार्मलेस और इसमें इनडाइजेस्टेबल सब्सटेंस होता है दैट ऐड बल्क टू योर डाइट. फाइन. अब व्हाट टाइप ऑफ फूड दैट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड और अवॉइडेड, कौन कौन से फूड हमें नहीं लेने. हाई फैट फूड लाइक बटर, प्रोसेस्ड चीज, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स. आई नो इनको रिस्ट्रिक्ट करना बहुत मुश्किल है बट स्टिल यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट फैटी मीट्स, फ्राइड फूड्स लाइक समोसाज, मठरीज, परांठास, पूरी, कचौरी, पोटैटो चिप्स, नट्स, पेस्ट्रीज, सैलेड ड्रेसिंग्स. हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स लाइक ब्रेड, केक्स, कुकीज, ड्राई फ्रूट्स, राइस पुलाव, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, हनी, सिरप या जैम्स, राइस पुडिंग्स, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, अल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड स्वीटेंड फ्रूट जूसेस. इन सब को हमें अवॉइड करना है अगर हमें एक वेट लॉस की डाइट को फॉलो करना है. देन देयर आर सम सजेशंस. बी प्रैक्टिकल. हमें बहुत ज्यादा ईगर नहीं होना कि एक ही वीक में हमने सब कुछ छोड़ दिया खाना पीना कि अब तो हम बिल्कुल ही पतले होकर दिखाएंगे. ऐसा नहीं है. प्रैक्टिकल होके हमें चलना है. देन डू नॉट सेट गोल्स टू हाई. ज्यादा हाई गोल्स नहीं सेट करने. डिजायरेबल वेट लॉस मैंने आपको बताया 0.5 to 1 kg पर वीक, ये बहुत ठीक रहता है. Then adapt specific needs to family meal by adjusting methods of preparation, reducing addition of fat and starch to lower kilocalories. Then do not be discouraged by plateaus. They occur due to water accumulation. ये जो हमारे जो टायर्स बन जाते हैं बॉडी में, ये सिर्फ ड्यू टू वाटर accumulation as fat is lost. Get started again by increasing exercise. Avoid binge eating. Adjust other meals of the day or of next day accordingly. ठीक है. स्पेशल लो एनर्जी फूड को अवॉइड करना है. दे मे नॉट बी ऑफ एज मच हेल्प एज क्लेम्ड. While eating away from home, अगर हम घर से बाहर हैं और हमें अपनी डाइट भी फॉलो करनी है, then select prepared item rather than combination dishes.
ठीक है. अवॉइड फ्राइड फूड. सिलेक्ट फ्रूट्स एज डेजर्ट्स रेदर देन हलवा, खीर, पेस्ट्रीज और पुडिंग. स्प्रेड फूड थ्रू आउट द डे टू मीट योर एनर्जी नीड्स. ऐसा नहीं है एक ही टाइम पे आपने बहुत सारा खा लिया और फिर एक टाइम आपने बिल्कुल स्किप कर दिया. नो. सो आपका डाइट प्लान जो है वो पूरे डे में आपकी एनर्जी नीड्स को पूरा करने वाला होना चाहिए. अब बहुत तरह की डाइट्स जो हैं आजकल नेट पर अवेलेबल हो जाती हैं, या ये जो स्लिमिंग सेंटर्स होते हैं वहाँ वो लोग आपको सजेस्ट करते हैं, लाइक कीटोजेनिक डाइट्स, नो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट, फैट डाइट्स, बनाना डाइट, प्रोटीन डाइट्स, फास्टिंग डाइट्स. और कुछ लोग फास्टिंग फॉलो करते हैं पतले होने के लिए कि वेट लॉस करना है. कुछ अलग अलग तरह की स्पेशल क्लॉथिंग्स और बॉडी रैप्स भी अवेलेबल है मार्केट में कि अगर आपको स्लिम दिखना है, आपका वेट कम करना है. बट देयर शुड बी अ बिग नो फॉर ऑल दीज. इन सब से आप फॉर अ टाइम बीइंग तो अपना गोल अचीव कर लेंगे, या मे भी ना कर पाए, या मे भी कर भी लें, बट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ये पॉसिबल नहीं है और ये सक्सेसफुल नहीं रहते. आप अगर एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करेंगे विद पॉजिटिव एटीट्यूड, विद बैलेंस डाइट और कंसिस्टेंट एक्सरसाइज, तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस होगा जो कि एक लंबे टाइम तक रहेगा. लेकिन अगर हम इन सब चीजों को फॉलो करके वेट लॉस को आगे बढ़ाते हैं तो वो ज्यादा ड्यूरेशन तक हमें हेल्पफुल नहीं रहता. फाइन. अब बच्चों बात करते हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की. दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर. सो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड. फर्स्ट वन इज डिफाइन ओवरवेट एंड ओबेसिटी. अधिक वजन और मोटापे को परिभाषित करें. व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू रेगुलेट वेट. वजन को विनियमित करना क्यों महत्वपूर्ण है. What do you mean by BMI और क्वार्टलेट इंडेक्स एंड फाइंड आउट योर BMI. अपना BMI कैलकुलेट करें और BMI का क्या तात्पर्य है. डिस्कस द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ ओबेसिटी. मोटापे के कारकों पर चर्चा कीजिए. व्हाट बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस वुड यू सजेस्ट फॉर अचीविंग वेट लॉस. वजन घटाने को प्राप्त करने के लिए आप किन व्यवहारिक संशोधनों का सुझाव देंगे. What are the different methods for assessing obesity? मोटापे के आकलन के लिए अलग अलग तरीके क्या हैं. What do you understand by visual inspection of obesity? मोटापे के दृश्य निरीक्षण से आप क्या समझते हैं. What are the hazards of obesity? मोटापे के खतरे क्या हैं. Enlist the various components which contribute towards the total body weight of an individual. विभिन्न घटकों को सूचीबद्ध करें जो किसी व्यक्ति के कुल शरीर के वजन में योगदान करते हैं. And write down the risk complications of obesity. मोटापे के जोखिम या जटिलताओं को लिखें. So ये थे आपके क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. बच्चों ये 3 बुक्स हैं जिनसे मैंने रेफरेंस लिया है. क्लिनिकल एंड थेरेपेटिक न्यूट्रिशन बाय इग्नू. Next is textbook of nutrition and dietetics, that is by Kumud Khanna, and nutrition and dietetics by Shubhangini Joshi. So that's all from my side. So eat right, stay healthy, and thank you very much.